رمضان میں دو عبادتیں انتہائی اہم ہیں، ایک روزہ، دوسرا تراویح۔ روزہ ہر ایمان والا الحمدللہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سحری نہ بھی کھائی ہو، الحمدللہ یہ مزاج بن گیا ہے کہ لوگ بغیر سحری کھائے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مزاج بن گیا ہے۔ میں دو تین باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ رمضان ہماری زندگی میں دوبارہ آ رہا ہے، اس رمضان کی قدر ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی میں بہت سے رمضان آئے، بہت سے رمضان چلے بھی گئے، اور گزشتہ رمضان بہت بے رونق، بہت بے کیفیت گزرا ہے۔ دعا کریں آنے والا رمضان اللہ تعالیٰ آباد رکھے مسجدوں کو، اور ماحول جو دینی ہے، روحانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے رمضان آئے، چلے بھی گئے۔ اگر آنے والے رمضان کے لیے ہم کوئی تیاری نہ کریں، کوئی نظام نہ بنائیں، تو جتنے رمضان ہماری زندگی میں گزر گئے ہیں، یہ رمضان بھی ایسے ہی گزر جائے گا۔ زندگی دوبارہ ملنے والی ہے یا نہیں پتہ نہیں، رمضان تک بھی ہم پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں، آس پاس میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان انہوں نے سحری کھائی، روزہ رکھا، ملاقات تو نہیں ہو رہی تھی لیکن فون پر گفتگو تو چل رہی تھی، حالات کا تذکرہ تو ہو رہا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کیا پتا کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان، اور اسی نیت سے، اسی ارادے سے اپنے رمضان کی تیاری کریں کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور رمضان ملنے تک بھی دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان حاصل کرنے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما چکا ہے۔ کوئی بشر، کوئی جن، کوئی انسان وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ تو آپ اس اونچے مقام پر رہتے ہوئے بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رمضان نصیب فرما، تو مجھے کس قدر رمضان کو اللہ سے طلب کرنا چاہیے؟ ہم انسانوں کو اللہ سے کتنا زیادہ رمضان مانگنا چاہیے؟ گناہوں میں لت پت ہیں، گندگیوں میں ملوث ہیں، اور کوئی ذخیرہ نیکیوں کا، کوئی پونجی بھلائیوں کی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو رمضان بہت زیادہ اہتمام سے ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر امت کو بتایا کہ تمہیں اس طرح رمضان مانگنا چاہیے۔ غرض رمضان آ رہا ہے تو پہلے سے تیاری کر لیں۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوقات کو ترتیب دے لیں، نظام بنا لیں۔ سحری کے لیے اٹھنے کا مزاج ہے ہی، اٹھتے ہیں ہی، تو سحری سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ 2 رکعت صحیح، 4 رکعت صحیح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور 4 رکعت کر کے نماز
8 रकात नमाज पढ़ते थे, 4 रकात, 2-2 रकात पर सलाम नहीं फिरते बल्कि 4 रकात पर सलाम फिरते थे। फला तस्अल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, मत पूछो कि वो कितनी लंबी नमाज होती थी, कितनी प्यारी नमाज होती थी। तो हुजूर ने जिंदगी भर तहज्जुद का एहतमाम फरमाया। तो हम लोग सहरी के लिए उठते हैं तो 2 रकात से कुछ होने वाला नहीं है, 4 रकात की कम से कम नियत कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 रकात पढ़ सकते हैं, 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल कम से कम 4 रकात की नियत करें, दुआओं का एहतमाम करें। सहरी खाएं, सहरी खाना सुन्नत है। उसके बाद औकात की तरतीब में कुरान पाक की तिलावत को शामिल कर लें कि आप फजर से पहले तिलावत करना चाहें या फजर के बाद तिलावत करना चाहें, आधा पारा, पौन पारा, जितनी आपकी ताकत है, इस्तेदाद है, पढ़ने की नियत करें, इरादा करें। तिलावत तो होनी ही चाहिए। मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा, तिलावत के साथ साथ हर शख्स एक सफ़हा कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करे। अल्लाह हमसे क्या कहना चाहते हैं, अल्लाह का क्या पैगाम है, अल्लाह तबारक व तआला का हमसे क्या मुतालबा है, वो हमें मालूम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़बान में कुरान पाक के तर्जुमे हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, कन्नड़ा ज़बान में। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो फ़ौरन कोई राय उससे कायम न करें, बल्कि उलमा से राब्ता करें कि इसकी आयत मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है। खुद से राय कायम कर लेना बहुत बड़ा नुकसान है। कभी कभी इंसान ईमान से भी दूर हो जाता है। तो कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करें। सुबह शाम की तस्बीहात हज़रात उलमाए किराम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, तस्बीहात भी होनी चाहिए। एक 100 मरतबा कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें। तीसरा कलमा पढ़ें सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। दरूद शरीफ आपको जो आता है वो 100 मरतबा पढ़ें। इस्तग़फ़ार 100 मरतबा पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाह या कोई और आप जानते हैं इस्तिग़फ़ार, वो पढ़ने की कोशिश करें। तो तस्बीहात का एहतमाम, कुछ देर आराम भी कर लिया करें। और फिर तिजारत के लिए जा रहे हैं, मुलाज़मत के लिए जा रहे हैं, तो इन बातों का लिहाज रखें कि आपकी ज़बान से कोई ग़ीबत का लफ्ज़, झूठ का लफ्ज़ आपकी ज़बान से अदा ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। ज़बान को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। आँखों को पाक व साफ रखने की कोशिश करें। कानों से गलत सुनने से परहेज़ करें। दिल में आने वाले ख़यालात को पाकीज़ा बनाएं, अपनी सोच को अच्छी रखें और हमातन अल्लाह की तरफ मुतवज्जिह रहने की कोशिश करें। और फिर नमाज़ों का मुकम्मल एहतमाम करें। जमात से नमाज पढ़ने की कोशिश करें, आदत डालें। रमज़ान का महीना तरबियत का महीना है, ट्रेनिंग का महीना है। तरबियत, ऐसी तरबियत कि अल्लाह का हुक्म सामने आए तो मुझे उस पर फौरन अमल करना है। अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ों को भी हराम कर दिया। रोज़ा रखकर आदमी खाना नहीं खाता, पानी को हाथ नहीं लगाता, हालांकि खाना हराम नहीं था, पानी हराम नहीं था, लेकिन रोज़ा रखने की वजह से वो चीज़ इंसान पर हराम हो गई। तो पाकीज़ा चीज़ों को भी हाथ नहीं लगाता, रोज़ा टूट न जाए। तो ज़बान की हिफाजत, आँखों की हिफाजत, कानों की हिफाजत, अपने दिल दिमाग की हिफाजत, इस तरह रोज़ा रखने की आप कोशिश करेंगे तो आपके अंदर एक तरबियत का मिजाज पैदा होगा, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने का जज्बा पैदा होगा। और शाम होती है तो आप इफ्तार करें, दुआओं का एहतमाम करें, असर बाद की तस्बीहात का एहतमाम करें और फिर खाने से फारिग होकर नमाज पढ़ी जाती है, जिसे तरावी कहा जाता है। तरावी बहुत शौक़ से पढ़नी चाहिए। तरावी ही नहीं बल्कि नमाज ऐसी इबादत है जिसको शौक़ से
जज्बे से, चुस्ती से पढ़ने की ज़रूरत है। सुस्ती, काहिली ये महरूमी का सबब बनती है। मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा था कि रमज़ान के इब्तिदाई दिनों में मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, खचाखच भरी हुई हैं। 2 दिन रमज़ान, 2 दिन तरावी क्या हुई, फिर हमारी मस्जिदें पुराने मामूल पर आ जाती हैं, वही 2 सफ 3 सफ बाकी रहती हैं। लोग फिर इंतज़ार करते हैं कि वो ताम रातों में फिर मस्जिद को आए। ये इंतहाई गलत बात है। रोज़ा तो रखा जा रहा है, लेकिन तरावी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और तरावी की नमाज को बोझ समझा जा रहा है। मुनाफिकों का हाल अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत में यूं इरशाद फरमाया, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। मुनाफिक जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो इंतहाई सुस्ती से, काहिली से खड़े होते हैं। अगर खुदा न खास्ता नमाज पढ़ते हुए हमारे अंदर काहिली, सुस्ती पैदा हो रही है तो सोचने की बात है कि कहीं निफाक के असरात तो हमारे अंदर नहीं आ गए, निफाक की कैफियत तो हमारे अंदर पैदा नहीं हो गई। इसलिए इंतहाई शौक से नमाज की तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। तो सूरह बकरा के दूसरे रुकू में अल्लाह तबारक तआला ने मुनाफिकों का तज़किरा फरमाया है। अब यहाँ तक तफसीर का सिलसिला ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद फिर सूरह बकरा इसी जगह से तफसीर का सिलसिला शुरू होगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हर किस्म के कुफ्र से, निफाक से अल्लाह हम सब की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। मौका गनीमत जाने, दुआओं का अहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला आसानी के साथ हम सबको, पूरी उम्मत को रमज़ान नसीब फरमाए। हर किस्म की परेशानियों से हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए।